afternoon, my lovely kids. How are you? I hope so you all are fine and taking care of yourself. So before starting our today's class, let's pray to God for our good health. So join your hands, close your eyes and you have to recite with me, okay? Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara. Tasmai Shri Guruve Namah. All of you open your eyes, put down your hands. Okay, so before starting our today's class, let's do some conversation part. Okay, that day I had taught you about how to write I, how to use me, my and this and that. Okay, so I hope so that you understand where to use all these types of words. He and she also we had completed in that. It also we had completed in that. So all this you have to do practice while doing conversation at home with your parents, with your elder brothers, sisters. You have to use these types of sentences so that you are able to speak little bit small sentences which will help you to improve your conversation part. Okay. So now today I am here some more new words. Okay, some more new words. So all of you sit properly at your proper place where you are doing your studies, and then you have to concentrate on it what I am going to teach today. Okay, okay then. You have to read some sentences with me, है ना? मैंने उस दिन जो वर्ड सिखाए थे आज उससे रिलेटेड हम कुछ सेंटेंस पढ़ेंगे. सो स्टार्ट विथ मी. I. Say I am a. If you are a boy, then you say boy. I am a boy. Full stop. After finishing of each and every sentence, you have to put this type of dot. It is known as full stop. It is known as full stop. Where you complete your words, where you complete your sentence, that time you have to put full stop. So I am a boy. Full stop you have to put there. Okay. Then if you are a girl, I am a girl. Full stop. Okay. Now listen. हमेशा हम I के साथ में क्या लगाते हैं आप ध्यान रखना. एम तो लगता ही है जब हम हमारे बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अभी आपके हाथ में मान लीजिए मेरे हाथ में ये स्केच पेन है. क्या है? स्केच पेन. तो मैं ये नहीं बोलूँगी आई हैज अ स्केच पेन. आई के साथ में हमेशा यूज करती हूँ हैव. HAVE हैव. सभी बोलो मेरे साथ में. HAVE have. HAVE have. HAVE have. I have a pen in my hand. In my hand. HAND hand. Full stop. मतलब मेरे हाथ में एक पेन है. मेरे हाथ में एक पेन है. So I have a pen in my hand. आया समझ में? hand मतलब हाथ, है ना? तो I के साथ में हम क्या लगाते हैं? have. I के साथ में क्या लगाते हैं? have. I have a pen in my hand. मेरे हाथ में एक पेन है. I have a pen in my hand. तो I के साथ में लगता है HAVE have. ये सारी चीजें आपको इंग्लिश टीचर्स भी पढ़ाएंगे. जब आप इंग्लिश का ये कॉन्सेप्ट आपके आते जाएंगे वो भी आपको पूरी तरीके से बताएंगे. बट आई एम डूइंग कन्वर्सेशन पार्ट, दैट्स व्हाई आई एम इंट्रोड्यूसिंग दिस थिंग्स टू यू कि जब आप बोलेंगे, ओके, व्हेन यू स्पीक, तो आपको कैसे यूज करना है. ओके. देन यू. YOU. यू हम
बताते हैं तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं यू, YOU, यू। यू मतलब आप। यू हैव अ पेन, मतलब यू के साथ में भी हम लगाते हैं हैव, HAVE, हैव। यू हैव अ पेन, यू हैव अ पेन, यू हैव अ पेंसिल, यू हैव अ बुक, या यू हैव योर मैथमेटिक्स बुक राइट नाउ विथ यू, मतलब अभी क्या आपके पास में आपकी मैथमेटिक्स की बुक है। सो यू हैव योर मैथमेटिक्स बुक, योर मतलब तुम्हारी, आपके पास क्या आपकी या तुम्हारी मैथमेटिक्स की बुक है। सो यू हैव योर मैथमेटिक्स बुक, ओके। सो यू हैव, यू के साथ में भी क्या लगता है हैव, यू के साथ में भी हम क्या यूज करते हैं HAVE, हैव, ओके। नाउ आफ्टर दैट हम यूज करते हैं she, 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 she और he भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। she के साथ में हम यूज करते हैं has, HAS, has। she has her mathematics book with, she has a mathematics book with her। her, मैं आपको हर और हिम का भी कॉन्सेप्ट बताऊंगी कि हर के किसके लिए यूज करते हैं और हिम किसके लिए यूज करते हैं। जो गर्ल्स रहती हैं, ठीक है, गर्ल्स के लिए हम यूज करते हैं HER, हर, HER, हर। हर यूज होता है गर्ल्स के लिए, ओके। हर किसके लिए यूज होता है गर्ल्स के लिए। जैसे ये उसकी, फॉर एग्जाम्पल ये उसकी पेन है ना, ये उस लड़की की पेन है, तो दिस बिलोंग्स टू दैट गर्ल, हम ये भी बोल सकते हैं, ओके। और शी का अगर हम यूज करते हैं तो शी हैज मैथमेटिक्स बुक विथ हर, मतलब उसके पास उसकी मैथमेटिक्स की बुक है। शी हैज अ पेंसिल विथ हर, मतलब उसके पास उसकी पेंसिल है। कई बार आप लोग क्लास में बोलते हैं ना मैम वो पेंसिल नहीं लाया, वो इरेजर नहीं लाई, लाइक दिस टाइप ऑफ वर्ड्स यू आर यूजिंग, सेंटेंसेस यू आर यूजिंग इन द क्लास। तो उसको इंग्लिश में हम अगर बोलना चाहते हैं तो हम कैसे यूज करेंगे। अगर आप गर्ल के लिए बोल रहे हैं तो गर्ल के लिए हमेशा हम क्या यूज करते हैं शी। तो शी जब हम यूज करते हैं तो शी के साथ में हैज लगाएंगे, और अगर गर्ल है तो हर का यूज करेंगे। शी हैज हर पेंसिल, शी हैज अ पेंसिल विथ हर, मतलब उसके पास उसकी पेंसिल है। शी हैज अ इरेजर विथ हर, उसके पास उसका इरेजर है। ऐसे ही अगर आप बॉय के लिए बोलना चाह रहे हैं तो हम लगाते हैं he has his pen with him, ओके। he has his pen with him, him हम लगाते हैं बॉयज के साथ में, him किसके साथ में लगता है बॉयज के साथ में, ठीक है। तो थोड़ा सा अभी आपको कंफ्यूजन होगा कि मैम इतनी सारी चीजें बता रही है, बट व्हेन आई रिपीट द थिंग एंड व्हेन यू विल read this type of words, sentences in your English class also, then you are able to understand all the things properly, okay। जब आप बार-बार रिपीट करेंगे ना किसी चीज को तो ही तो आप उसको समझ पाएंगे। एक बार में कोई भी चीज इतनी जल्दी समझ में नहीं आती है, उसके लिए क्या जरूरी है रिपीटेशन, प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छे से उसको पढ़ सकेंगे, उसको बोल सकेंगे, और आप जब इन सारे वर्ड्स सेंटेंसेस को जब आप यूज करेंगे रोज, तो इट्स वेरी इजी फॉर यू टू स्पीक इन इंग्लिश, डू योर कन्वर्सेशन प्रॉपर्ली, है ना। तो इसके लिए क्या जरूरी है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन, ओके। नाउ लेट्स कम बैक टू आवर मैथमेटिक्स। सो टेक आउट योर मैथमेटिक्स नोटबुक, राइट टुडेज डेट, ओके।
एडिशन हम स्टार्ट कर चुके हैं, अब हम फिर से करेंगे इसको। ओके, okay. So I had already taught you addition twice. So again we are doing the same thing so that it will be easy for you to do properly by yourself without taking help of anybody. Okay. Okay, now number one, what you have to write? You have to give two gaps here and write here 2, here 3. Sign of addition. It is known as sign of addition. What it is known as? Sign of addition. Now, in this block, you have to make like this box. Now, we had already completed with pictures, okay? Mentally with hands, I told you that you can use the objects also. आप ऑब्जेक्ट सामने रखिए, उसको काउंट कीजिए, इट विल बी इजी फॉर यू, ओके? बट हमें मेंटली भी आना चाहिए, फिंगर्स के थ्रू भी आना चाहिए, क्योंकि हम एग्जाम टाइम में ऑब्जेक्ट्स इतने सारे पास में नहीं रख सकते हैं ना, तो हमें आना चाहिए उसे। तो हम अभी करेंगे मेंटली कि हम उसे कितना कैसे कर सकते हैं। What is written here? 2. What is written here? 2. मैंने आपको क्या बोला था? What is the meaning of addition? एडिशन का मतलब होता है दोस्ती करना, है ना, एक दूसरे से फ्रेंडशिप करना, दोस्ती करना। तो ये नंबर्स है, ये नंबर्स को भी इन आपस में इनको फ्रेंडशिप करना है। अब फ्रेंडशिप करना है तो इन्हें आपस में पास आना पड़ेगा, टुगेदर आना पड़ेगा, साथ में आना पड़ेगा, तभी तो ये लोग फ्रेंडशिप कर पाएंगे ना। तो अब हमको इनको फ्रेंडशिप करवाना है और देखना है कि ये टोटल कितने नंबर्स बनते हैं। तो व्हाट इज रिटन हियर? 2. So you have fingers in your hands. So raise up your 2 fingers. 1, 2. Okay. What is written here? 3. Now we have to raise 3 more fingers. In the same hand also you can raise up 3 fingers. Otherwise you can use your second hand to raise up 3 fingers. So 1, 2, 3. Now all together मतलब साथ में. All together we have to join and we have to add the fingers. So now let's start. 1, 2, 3, 4, 5. So how many fingers? I had raised up 5 fingers. So our answer will be here 5. Do this. Okay, now after that what you have to do? Put 2 dots. 1 dot, 2 dot. Okay, then write from here. So I am going to write here 6,
2. Okay. Sign of addition. This is sign of addition, and then make block here. Now see, which number is written here? You have to recognize the number also. Okay, so which number is written here? Number 6. So how many fingers now I have to raise up and you have to raise up? 6 fingers. Why? Because it is written here 6. So we have to raise 6 fingers. So let's start counting and we raise our 6 fingers. 1, 2, 3, 4, 5. These are 5 fingers. And then I am raising my 6th finger, thumb also. Now all together I have 6. Now how many much more I have to raise up? Here it is written 2. 6, 1, 2. Now all together I have to count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. See here, if I will write here, you are not able to see from the board. If you have placed in your notebook, after this you can put 2 dots and then you can write, but I have no place here, so I am going to write this side. Okay, so I am writing here 3, sign of addition and 1. Okay, now I have to make box here. See, one more thing you can do. आप एक और चीज कर सकते हैं. देखिए कैसे. 3 लिखा है, हमें ये तो मालूम है 3 है ये. 3 के बाद में कितना लिखा है नीचे? 1. आप सिंपल कीजिए कि 3 के बाद में आप 1 फिंगर रेस कीजिए और आपको काउंटिंग आती है. 3 के बाद में अगर मैंने 1 फिंगर रेस किया है तो 3 के बाद में क्या आता है? 4. तो इट्स वेरी सिंपल. आप ऐसे भी कर सकते हैं. ओके, सो यू कैन राइट हियर 4. मतलब ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है वो आपको पता है कितना है. उसके नीचे जो नंबर लिखे हैं उतनी फिंगर रेज अप कर लीजिए और उस ऊपर वाले नंबर के पास से काउंटिंग करके उस फिंगर्स को गिन लीजिए. देखिए अभी हम और करते हैं, मैं आपको बताती हूँ कैसे. अगेन यू पुट 2 डॉट हियर. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू राइट हियर 4, हियर 3, साइन ऑफ एडिशन एंड हियर बॉक्स आई एम गोइंग टू मेक. ओके, देखो अब कैसे करना है. 4 ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पे ऊपर 4 लिखा हुआ है, नीचे कितना लिखा है? 3. दैट मीन्स अभी हम सिर्फ 3 फिंगर्स ऊपर करेंगे. 1, 2, 3. अब 4 ऑलरेडी लिखा हुआ है और 4 के बाद 3 था, मैंने 3 फिंगर्स रेज अप कर दी. अब 4 के बाद मुझे काउंटिंग करना है. 5, 6, 7. वेरी सिंपल. सो यू कैन राइट हियर 7. Okay, my dear kids, now some more sums we will do. If you have space, अगर आपके पास space है तो आप उसी पेज पे कर लीजिए. अगर नहीं है then take your new page. Okay, I have no space, so I am going to take my new page here. I am going to write here 5, here 3, sign of addition. Now what I told you कि 5 is written here upside. ऊपर कितना लिखा है? 5. नीचे 3 लिखा है, तो मैं 5 फिंगर्स रेज अप नहीं कर रही क्योंकि मुझे पता है 5 तो लिखा ही है, नीचे 3 लिखा है तो मैं 3 फिंगर ही रेज करूंगी. 1, 2, 3. अब मुझे क्या करना है? ये
write here 8. आपको मैंने 3 से 4 तरीके से एडिशन करना सिखाया है। आप जो जैसा करना चाहें आप वैसा यूज करके कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको दोनों नंबर्स पे फिंगर रेज अप करना सिखाया है, सिर्फ नीचे वाले नंबर पे फिंगर रेज अप करके सिखाया है, पिक्चर्स के थ्रू सिखाया है। आप ऑब्जेक्ट्स यूज कीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे करना है। लेकिन जब आप रिपीट करेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छे से एडिशन कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। ओके, नाउ अगेन 2 dots here. Now I am going to write here, sorry, 2, here also 2. Okay, and sign of addition and box. Now 2 is written here already, upside 2 is written here and down also 2 is written. So how many fingers I have to raise up? Only 2 finger I will raise up. I will not raise up these 2 fingers. These 2 fingers I will raise up. Okay, अब 2 already लिखा हुआ है, 2 के बाद में मुझे 2 fingers को और गिनना है। तो 2 के बाद क्या आता है? 3, 4. So simple, we will write here 4. Okay, now after that, मैंने क्या लिखा? 7 लिखा, यहाँ पे 1 लिखा। अब मैं सिर्फ 1 फिंगर रेज अप कर रही हूँ। ये मैंने रेज अप कर ली 1 फिंगर। 7 लिखा हुआ है। 7 के बाद में अगर मैंने 1 फिंगर रेज अप किया है, क्योंकि नीचे 1 लिखा है इसलिए मैंने 1 फिंगर ही रेज अप किया है। तो 7 के बाद में क्या आता है बेटा? 8। आपको काउंटिंग अच्छे से आना चाहिए इसके लिए। तो 7 के बाद में क्या आता है? व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर 7? 8। तो 7 के बाद में मैंने 1 फिंगर काउंट करी, so my answer is 8. Okay, then again put 2 dots here. Now I am going to write here 9. Okay, and 1. What is written here? 9. What is written here? 1. So I am going to raise up my 1 finger. 9 के बाद में क्या आता है? What comes just after 9? 10. So my answer is here 1, 0, 10. So today beta we had again completed the concept of addition by using 2 methods, है ना, जिसमें हमने ऊपर और नीचे दोनों के नंबर्स को फिंगर्स के थ्रू ऐड करना सीखा। फिर सेकंड मेथड हमने क्या यूज करा कि हमने ऊपर वाले नंबर को नहीं फिंगर रेजअप नहीं की, सिर्फ नीचे वाले नंबर पे फिंगर रेजअप की और उसको आगे काउंटिंग को बढ़ा के ऐड कर दिया। So 2 methods today I had teach you. Okay, now it's your turn to do practice and practice, because practice makes the man perfect. तो आपको परफेक्ट बनना है। परफेक्ट बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस। So till then, bye bye, have a nice day.